स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल करामा श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज ऑफ स्टमक, हाइड्रोट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑफ इन्फेंट्स, कॉन्जेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। द स्टेनोसिस क्या होता है? स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग और कंट्रैक्शन ऑफ अ बॉडी पैसेज और ओपनिंग. पाइलोरिक स्टेनोसिस, obstruction of pyloric orifice of the stomach. Etiopathogenesis: in this condition there is a heterotropy involving the pyloric central circular muscles fiber. Duodenum is normal. The lumen is so much narrowed as given the rise to the pyloric obstruction. Familiar history can be obtained in few patients. Incidence occur in 3 or 4 times in every 1000 births, but causes unknown. The characteristically first born male patient are most commonly affected. The peak incidence for the onset of symptoms is between 3rd and 6th week of life. Clinical features: symptoms, these are vomiting in the presenting symptoms in advanced cases and within 2 or 3 days, and it becomes the possible and projectile, but it is not present in vomit. Immediately after the vomiting, the baby is often very hungry. Visible persistence after child has been fed. Persistence may be seen. Presence of lump, swelling, constipation, loss of weight and dehydration. Investigation and radiography. Barium meal shown should show persistence, narrowing and elongation of pyloric canal. DD duodenal erythritis, high intestinal obstruction. PX medical DD correct the dehydration. IV fluids and prevent infection with antibiotic. Surgical DD operation. Dermatitis, pyloroctomy complication, post-operative pyrexia, gastroenteritis, disruptions of the wound. Next one है peptic ulcer. ये एक definition है कि ulcerative peptic dilations of the element mucus resulting in an ulcer is known as peptic ulcer. Type है depending on the site. Chronic duodenal ulcer, chronic gastric ulcer. The gastric ulcer occur in least curvature, lesser curvature of the present to the acid secretion. Partial cell mass combined में gastric xylylation syndromes आते हैं और anastomotic ulcer आता है. Depending on duration, acute peptic ulcer and chronic peptic ulcer. Acute peptic ulcer etiology: drug like aspirin, amylinic steroids, phenylbutazone. Any stress, acute infection after burn, they are called curling ulcer. After head injury and neurological operation called crushing ulcer. The following hypotension and shock called acute stress ulcer. Excessive symptoms of the consumption of the. इसके बाद है एनी स्ट्रेस एक्यूट इन्फेक्शन आफ्टर बर्न, दे आर कॉल्ड कर्लिंग. आफ्टर हेड इंजरी एंड द न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशंस कॉल्ड एज कशिंग अल्सर. द फॉलोइंग hypertensions and the shock called acute stress ulcer. Excessive consumption of alcohol, smoking, respiratory failure can also produce the acute ulcer. एरोजन पैथोलॉजिकली जो है ये डिफ्यूज म्यूकोसल डैमेज्ड एंड डिस्ट्रप्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर, रिफ्लेक्स ऑफ द bile also may be the precipitating factor. This result in acute erosion when they are of first to mm or acute ulcer within the day or first to an inside swallow pale or well demonstrated. Clinical feature की बात करें, symptoms है dysuria, उसके बाद है हेमेटाइसिस, acute abdominal pain, vomiting. Diagnosis endoscopy to confirm the diagnosis. Treatment है Ryle's type aspirations and the ice cold water, replacement of blood, regular antacid, saline for stomach wash, injection pentazole or ranitidine, IV fluids. Next one जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप दोगे insight of above treatment to save the life of the patient. Total gastrectomy or the subtotal gastrectomy may be performed. Next है chronic पेप्टिक अल्सर. ये दो तरीके का होता है, क्रोनिक डिओडनल अल्सर, क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर. इंसिडेंस की बात करूँ तो क्रोनिक डिओडनल अल्सर और रेशियो क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर 30:1 है. क्रोनिक डिओडनल अल्सर एटियोलॉजी है हाइपर एसिडिटी. इसके बाद इज द चीफ कॉज ऑफ डिओडनल अल्सर नो एसिड नो अल्सर. ठीक है. न्यूरोजेनिक कॉज की बात करें, स्टिमुलेशन है वेगस इंक्रीज करेगा सुरेशन ऑफ द सक्शन ऑफ द एसिड को, और दिस इज ब्रॉट अबाउट द बाय द स्ट्रेस, एंजाइटी, बरी, हरी करी, नॉन स्टेरॉइड, नॉन
स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करें तो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर दैट द DU बाई सिक्रेटिंग म्यूकस डिफेंस। गैस्ट्रिक कॉज जो है वो फैमिली हिस्ट्री है DU की मे बी प्रेजेंट इन अ फ्यू केसेस विच सजेस्ट गैस्ट्रिक जेनेटिक कॉज। पेशेंट्स एट ब्लड ग्रुप O आर more prone for the development of chronic duodenal ulcer because of increased partial cells। Accessory causes है फूड हैबिट्स होती है, inadequate mastication होता है, irregular meals होती हैं, spicy foods होता है, poor diet, smoking, alcohol along or in the combination precipitate the development of CDU। बैक्टीरियोलॉजिकली कॉज जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, स्पेरेंटोकैथल बैक्टीरिया है, फाउंड in alimentary canal। It increases pH level by splitting urea and releasing ammonia। rise in pH result in proliferation of the bacteria। endocrine cause की मैं बात करूँ तो hyperparathyroidism cause increases level of calcium which stimulate the partial cell mass thereby resulting in hyperacidity। Zellington-Ellison syndrome देखने के लिए मिलता है। etiology है CGU की ulcer occur due to the defective gastric mucosal बैरियर। ये बैरियर जो है ये क्या है, कोट है, थिकिंग म्यूकोसा विच इज इम्परमेबल टू द पेप्सिन। नॉर्मली प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा डोंट अलाउ बैक डिफ्यूजन बाय हाइड्रोक्सी आयन फ्रॉम द ल्यूमेन। NSAIDs inhibit the production of prostaglandin thereby causing the loss of the protective activity। this can also be damaged by smoking, spicy food, alcohol and reflects by the bile into the stomach। next की पैथोलॉजी की बात करें तो अल्सर जो है वो GU और DU टेंड करता है अकर इन अल्कलाइन म्यूकोसा। द अल्सर बियरिंग area is shaded area। this is much smaller than the area of atrophic gastritis which is the precursors of the gastric ulcer। the ulcer itself occur in the alkalosis must be atrophic area adjacent to the acid secreting funding mucosa। chronic peptic ulcer with the muscular position which is tend to penetrate। clinical features की बात करें तो देखो पहले तो clinical features में CGU CDU ऐसे CGU में जो इंसिडेंस है लेस कॉमन होता है, CDU में कॉमन होता है। साइट है CGU की, पहले CGU के बारे में से बता देते हैं, ठीक है। साइट है लेसर कर्वेचर ऑफ पाइलोरिक रीजन, लेकिन CDU की क्या है, फर्स्ट इंच ऑफ इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ डिओडनम, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट इंच ऑफ पार्ट ऑफ डिओडनम, ठीक है। उसके बाद है पेन का क्या करें, पेन CGU में पेन अकर ड्यूरिंग द फीड एंड इट इज़ रिलीव बाय इंड्यूसिंग वॉमिटिंग एंड पेन। उसके बाद है CDU की बात करें ड्यू टू द इरिटेटिंग द हंगर इट रिलाइजेज ऑन cases after 1 to 2 hours of food pain becomes severe। it is also burning and increased salivation। vomiting की बात करें frequent और occur immediately after taking food। CGU में CDU की बात करो तो नेवर अकर टिल द पेशेंट डेवलप पायरोलिक स्टेन है। एपेटाइट है अफ्रेड टू ईट CGU में। CDU में गुड है। डाइट में CGU में बात करें एज मिडिल एज है। CDU में बात करें बिटवीन 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज है। CGU में बात करें वेट लॉस होता है, CDU में वेट गेन होता है। पीरियडोसिटी लेस CGU है, CDU में कॉमन होता है। हेमाटोनाइटिस एंड मेलेना में CGU 60:40 है, CDU में 40:60 है। एग्जामिनेशन CGU में टेंडरनेस एपिगैस्ट्रियम में होती है और CDU में टेंडरनेस एंड राइट हाइपोगैस्ट्रियम होती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ऑस्टमी ऑफ गैस्ट्रोडियोप्थॉमी अल्सर अपीयर्स एज क्रेटरल बेरियन मील स्टडी इन CGU appears as nature in the lesser curvature due to the ulcer curvature and as not along the gravital curvature due to the spasm of stomach। CDU deformed duodenal cap test for the helicobacter pylori में mucosal biopsy serological test। इसके बाद है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ब्लड एग्जामिनेशन, HB increase, ESR raise in CGU suggest malignancy, stool examination, ocular blood seen, treatment TT of CDU, conservative treatment H2 receptor blocker, histamine H2 receptors। इसके बाद है रेंटेरिन 150 mg BD एंड 6 वीक। उसके बाद है सिटीमेडाइन 200 mg आफ्टर मील्स एंड 400 mg एट नाइट HS और 4 to 6 वीक्स। फेंटेडिन 60 mg BD साइड इफेक्ट ऑफ रिसेप्टर्स गायनोमास्टेशियन रिडक्शन इन स्पर्म काउंट। H पॉजिटिव एंटागोनिस्ट PPI ओमेप्राजोल 20 mg OD एंड 2 वीक। लेनाप्राजोल 30 mg पर डे। पेंटाप्रोजिक 40 mg पर डे। एंटासिड गिवन इन हाई डोज 120 ml पर डे। केयर है टिकटेकिशन थेरेपी एमोक्सिसिलिन 500
mg every 8 hourly. Metronidazole 400 mg every 8 hourly is given to eradicate H. pylori along with omeprazole. Surgical treatment की बात करूँ, indication for surgery, irritable pain, frequent relapse, complications, operation for duodenal ulcer, highly selective vagotomy, pyloroplasty, vagotomy with the enterotomy, polygastrectomy, pyloroplasty with vagotomy. TT for chronic gastric ulcer. Aim of TT: healing of the ulcer and relief of the symptoms. Biopsy done to the rule out malignancy. Medical line of TT. TT can be given in a DU in a form of Ranitidine, omeprazole, etc. Stop smoking, alcohol and drugs such as NSAID. सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर, सर्जिकल ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक अल्सर, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर, बायलोसन फर्स्ट 1881, पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी, बायलोनॉश सेकेंड 1885, पॉली गैस्ट्रोक्टोमी, HSV, हाईली सेलेक्टिव वेसेक्टोमी विद द excision of the ulcer. Next है complications of peptic ulcer, acute perforation, hematemesis, melena, subacute residual abscesses, chronic stenosis, pyloric site, teapot deformity, hourglass contracture, penetration into the pancreas and carcinoma. Next जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक ट्यूमर का. बेनिंग ट्यूमर होता है, लेग्लिनोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, एडिनोमेटस पॉलीपोपिस, मैलिग्नेंट है, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक. इंसिडेंस ऑफ सी ऑफ स्टमक. सी ऑफ स्टमक इज वन ऑफ द कैप्शन ऑफ द men of the death. Highest age of incidence is between 40 to 60 years. Sex male and female का रेशियो होता है 3:1. Etiology definite malignant condition, gastric polyp, pernicious anemia, gastric ulcer, dietary factor, red meat, cabbage, spices, salty fish, stable diet, smoked salmonella fish, ingested carcinoma like hydrocarbon of the cooking fat. नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है वो है टोबैको यूज, मीट स्प्लिट्स, इंक्रीजेज ऑफ द इंसिडेंस ऑफ सी ऑफ ब्लड. ए ऑल्सो हैव द इंसिडेंस फॉर CS ऑफ स्टमक. पैथोलॉजी की बात करें माइक्रोस्कोपिकली, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ CA. अ काउली फ्लावर लाइक ग्रोथ विद अ शार्पली डिफाइंड स्टेज, इट्स surface is indolated hard and giving rise to the melena or bleeding causing the anemia. An ulcer with the regular indulge of the colloidal carcinoma, infiltrated type chirosis localized on the diffuse CA secondary to the chronic ulcer. Gastric ulcer microscopically the growth is usually columnar called, but the cubical and even squamous called neoplasm arise near the esophageal orifice, spread direct lymphatic by blood stream, transparental implantation. Clinical features of CA of stomach: gastric descent, irritation, anorexia, anemia, tiredness, failure, weakness, loss of weight, inability to take the normal wheel and vomiting, persistent pain, no response to the treatment and no periodictomy. Clinical group: no dyspepsia after 40 years, insidious onset especially in a men, feel tired, weak and anemia, anorexia, asthenia may be seen. And the A3 anemia, anorexia and asthenia is seen. Next one है आपका lump. In about 80% of cases, lumps can be seen palpatively, but silent lump in the abdomen is hard, irregular. CA of the body of stomach may be silent but giving rise to the features in other organs such as obstructive jaundice, arthritis. The CA of the obstructive type में CA of the cardiac present with dyspnea, C of pylorus with the fullness, bleaching and their vomiting. Next one जो है वो आपका है blood examination. कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, HB जो टेस्ट होता है वो यूज़ करते हैं, एनीमिया करते हैं, प्रेजेंट इन 45% ऑफ केसेस, ESR इंक्रीज होता है 70% ऑफ केसेस, और ऑकुलर्ट ब्लड इज प्रेजेंट इज सीन. रूटीन एग्जामिनेशन में ब्लड शुगर फास्टिंग और रैंडम करोगे, KPT दोगे, KFT करोगे, सॉरी KPT नहीं KFT है, ECG करोगे फॉर द फिटनेस ऑफ सर्जरी, एक्सरे करोगे, गैस्ट्रेक्टोमी, USG, साइटोलॉजी, CT स्कैन, MRI टू रूल आउट सेकेंडरी डिग्री इन एंड लुक फॉर द enlarged celiac node to rule out ascites and useful in the detached metastatic disease. Barium meal examination. Barium meal may be short, intrinsic peristalsis and irregular filling defect. The M staging of carcinoma. T0 no evidence of tumor. T1 incidence of
of submucosa, T2 invasive of subserosa, T3 penetration of serosa, T4 invasion of adjacent structures, N0 no regional lymph node, N1 1 to 6 lymph nodes present for malignancy, N2 7 to 15 lymph nodes present for malignancy, N3 more than 15 M for metastasis, M0 no distinct metastasis, M1 distant metastasis is present. This is a staging after the surgical dissection. ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में करोगे रेडिकल ऑपरेशन, रेडिकल टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी, 3 तरीके का होता है रेडिकल ऑपरेशन, रेडिकल टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी, रेडिकल अपर गैस्ट्रेक्टॉमी, रेडिकल लोअर गैस्ट्रेक्टॉमी, रेडिकल टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी फॉलोड बाय द ओएसोफेगस jejunostomy, रेक्सी ओएसोफेगोलॉक्टोमी. The stomach having the continuity of the instant organ can be restored by the in which the first loop of the jejunum is divided into the distal end of with the oesophagus and the free proximal end is implanted and to side the jejunum below the cutaneous. Indications की बात करें CA of cardiac and the upper third of the stomach operation, upper radical gastrectomy with the oesophylloctic anastomosis with the pyloroplasty, lower radical partial gastrectomy, CA of the pyloric end of the stomach. Next one is symptom operation completed by the bilero. Thus, first anastomosis consists of the partial gastrectomy with the gastroduodenal anastomosis, palliated operation, palliated gastroctomoscopy. Indication for inoperable pyloric CA of the enterectomy. Growth operation, anterior jejunotomy done to the relieve vomiting by the anastomosis of a jejunal loop of the stomach in the pyloric region. Next, chemotherapy for the stomach. The gastric CA or partially responds to the chemotherapy. About 30% of cases in the evidence stage. Indication injection 5 FU 500 mg IV and 5 for every 28 days. It can be given by IV infusion or IV pylorus of at every 15 minutes. Combination of SFU with the adrenomyosin, myomectosin and the cisplatin also have tired. The intraperitoneal myomectomy since C impregnated charcoal also have been used. Complication of gastric operations, gastric complication, pulmonary, cardiac and thrombectomy. Special component, early or late early hemorrhage from the menstrual line, pyloproctiliac stomach obstruction, duodenal fistula, acute post operative pancreatitis, late में है recurrent ulcer, gastrojejunal colic fistula. Next post gastrectomy, sinus intestinal obstruction, pulmonary TB, anemia, C of the remnant gallstones. Next one जो है वो है post gastrectomy syndrome. It may be classified as follows: post CBL syndrome. इसके बाद अर्ली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हेमरेज फ्रॉम द एनामेस्ट्रोसल लाइन, पैरालिटिक इलियक, स्टमक ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यूodenal फिस्टुला, अक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव पैनक्राइटिस, लेट कॉम्प्लिकेशन, रिकरेंट अल्सर, गैस्ट्रोजेनियम कॉलिक फिस्टुला. उसके बाद पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पल्मोनरी टीबी, एनीमिया, सी ऑफ द रेमिनेंट गॉलस्टोन्स. पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम इट मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. उसके बाद है पोस्ट सीलेबल सिंड्रोम, अर्ली पोस्ट सीबल सिंड्रोम, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, लेट पोस्ट सीरियल सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ लेट डंपिंग सिंड्रोम है. दिस सिंड्रोम complex result due to the rapid emphasis of the stomach content to the intestine result in the various physiological changes like vasomotor. नेक्स्ट जो है वो है सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एक्सेट्रा देखने के लिए मिलता है. डंपिंग होता है. डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? सिम्टम्स है अर्ली और लेट दो तरीके के होते हैं. इंसिडेंस अर्ली में देखो क्या है 5 to 12%, लेट में 5%. रिलेशन टू द मील, अर्ली में इमीडिएटली आफ्टर द मील्स और लेट में ड्यूरिंग सेकेंड आवर्स ऑफ द मील्स. नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ अटैक, अर्ली में 30 to 40 मिनट और लेट में भी 30 to 40 मिनट. अर्ली में रिलीव बाय लाइंग डाउन और लेट में बाय फूड एंड ग्लूकोज. द एग्रीवेशंस फैक्टर, मोर फूड खाने से अर्ली में होगा, एक्सरसाइज से लेट में होगा. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, अर्ली में बल्क ऑफ फूड. नेक्स्ट है लेट में कार्बोहाइड्रेट्स. उसके बाद चीफ सिम्टम्स है अर्ली में एपिगैस्ट्रिक फुलनेस और डायरिया, स्वेटिंग सेंसेशन
और लेट में है ट्यूमर, फेंटनेस, एपिगैस्ट्रिक एम्प्टीनेस एक्सेट्रा। इसके बाद है ऑक्यूरेंस में कॉमनेस्ट, अर्ली में कॉमनेस्ट आफ्टर द पोलियो गैस्ट्रेक्टोमी। उसके बाद लेट में है नेटिन एनी टाइप ऑफ गैलेक्टोमी। ट्रीटमेंट में अर्ली है स्मॉल ड्राई फूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिम्टम्स स्टिल डाउन। लेट में है डिसेक्टोमी एडजेसेंट ऑफ फूड। उदर रोग की बात करें तो दुर्बल अग्नि वाले मनुष्य के मिथ्या आहार विहार के सेवन से, सूखे सड़े गले बासी अन्न के सेवन से, स्नेहन स्वेदन तथा वमन आदि पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग करने से प्रकोपित वातादि दोष, गुल्म के समान आकृति के तथा स्पष्ट लक्षण वाले युक्त अयस्कर उदर रोग उत्पन्न होते हैं। संप्राप्ति की बात करें तो रुद्र मतलब वृक्ष गंध सेवन करने से स्वेद अम्बी वाहिनी दोषास्त्रांसी संचिता प्राणगणातम संदृश्य जयन उदरम तृणात। पूर्व रूप की बात करें तो पूर्व रूप में जो बात है उसमें तत्पूर्व रूपम बलवर्ण काक्ष्य अक्षी बल नाशो जठरे ही राजा, यानी कि पूर्व रूप में बल वर्ण अक्षी बल सबका नाश हो जाता है, जठर अग्नि कम हो जाती है, जीर्ण परिजानु जो भोजन होता है वो जीर्ण नहीं हो पाता और विदा जलन होती है। वह त्यो बस्तो बस्ती रुझा पादगत शोक, पादगत शोक हो जाता है, बस्ती रोग हो जाते हैं। ये होता है। लक्षण क्या है? कक्षे आदमान अटोप, यानी कि कुक्षे आदमान होता है, कुक्षी में आदमान होता है, अटोप होता है, शोफ होता है, पादस्य चा मंदाग्निश लक्षण, कार्शर्य चा उदर लक्षणम। भेद हैं इसके पाद पित्त कफ सनिपात, छिद्रोदर, दकोदर, जलोदर और वकोदर। वातोदर की बात करें तो अग्निवातो च प्रतिहसो श्वास गुरुत्वगणात् नख नयन वदन त्वंग मूत्र वयस्यम कुक्षे पाणिपाद वृक्ष शवतु उदर विपाटनम सिताराजी सिरासपम। चिकित्सा की बात करें तो विदारी गंध आदि गण से सिद्ध घृत का सेवन कराना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें अगर पित्तोदर की तो कटु का अस्यत्वम हरित हरिद्रत्वम नख नयनम वदनम तंग मूत्र वर्चस्वम दहते दर्यते दूष्यते उष्यात अचिरा भी वृद्धि। चिकित्सा की बात करें तो काकोले आदि गढ़ के औषधियों का सेवन करने से कफोदर, शुक्लतम च नख नयन वदनम त्वंग मूत्र वर्चसम पाणिपाद मुक्ष उरुशोक शुक्ल राजी सिरासवत्वम। चिकित्सा की बात करें तो पिपलीगढ़ की औषधियों को सिद्धग्रत से संधि वातोदर में निदान है। स्त्रियों के द्वारा नख रोग, मूत्र विष्ठा और रुज अन्न व बेक से गर्विष का सेवन करने से, दूषित अम्बु व दूषित विष के सेवन से, इनसे शीघ्र ही रत्वा पातादि दोष कुपित होकर भयंकर त्रिदोष मुक्त उदोदर उत्पन्न करता है। लक्षण की बात करें तो शीतवता ब्रह्ममुद दवय विशेषता कुशवंती दहते चा। इस तरह से शनिवातोदर से पीड़ित रोगी बार बार मूर्छित हो जाता है तथा पांडुपा दुर्बल हो जाता है, व्याप्त से सूखता है, नाना वर्ण सिरा पिपास। चिकित्सा की बात करें तो प्रख्यात्वम विरेचनम सारास्वेनम शंकिनी के स्वर से घृत द्वारा एक मास तक 15 दिन तक विरेचन कराएं। कोष्ठ के शुद्ध होने पर मध्य के साथ कनेर, गुंजा और काकादि के जड़ का कल्क पिलाएं। ईसु कांडेदि द कृष्ण सर्वेणा दश्यंतवा भषेण मूल व कंद विष का सेवन करें। इसके बाद प्लीहोदर की बात करें तो निदान है विदाही व अभिशंति वस्तुओं के अधिक सेवन करने से मनुष्य का जो रक्त और कफ व्याधि रोग में प्रकोपित होकर प्लीहा का निरंतर बढ़ाते रहते हैं, इसे ही प्लीहोदर कहते हैं। लक्षण की बात करें तो प्लीहा जो होती है वो वाम पार्श्व में बढ़ती है तथा इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्लानि युक्त रहता है। कफ संस्थान में अष्टलादपद, मंद ज्वर, मंदवाग्नि, कफ और पित्त के लक्षण वाले उपद्रव से युक्त होकर क्षीण बल तथा अधिक पांडुवर्ण का होता है। सिरावेदन करते हैं। वाम बाहु कपूर संधि अग्निकर्म मणिबंध मोड़कर भवांगूठे की ओर छार प्रयोग, शुक्तिसार, पलाशसार एवं अपमार्ग छार, छटपल व्रत, बहु गुदोदर पक्षम वाले सहनमन मुक्ते बढ़ाए गुदे उदावर्तम स्थाते शोभित सन समूर्छनवा। इसमें गुदमार्ग के रुक जाने से कारण अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देती है तथा मल पित्त व कफ को रोककर उदर रोग उत्पन्न कर देती है। लक्षण गुदा में मल का विरोध होने से मल थोड़ी थोड़ी मात्रा से निकलता है। अनाभिमंदे परिवृद्धि मेति खद उदरम विट संधिवक्त सजने, चरक नाभि के ऊपर गौपूछ के आकार का होना होता है। चिकित्सा होती है शस्त्रकम, स्नेहन स्वेदन व नाभि के नीचे व भयंकर
करें। नाभि के नीचे वाम पार्श्व के 4 अंगुल छोड़कर चीरा लगावें और 4 अंगुल आंत को बाहर निकालकर अवरोध दूर करके मधुव्रत लगा के यथास्थान स्थापित कर दें। सचरिंग करें। 15 दिन बाद आराम हो जाएगा। परिस्रावी छिद्रोदर और शतोदर परफोरेशन कहते हैं इसे। अन्न के साथ खाया हुआ मत्स्य कंठ कदस्य शल अथवा टेढ़ा हुआ शल अन्न का भेदन कर देता है। बिना आंत से जल के समान रंग रूप वाला उसके बाद क्या होता है, गुदा से बाहर निकलता है तथा कुछ स्त्राव उदर गुहा से चले जाने से नाभि के नीचे उदर फूल जाता है और सूज चुभने से तीव्र पीड़ा एवं उदरमेदा होती है। चिकित्सा होती है। शल्य से निकाल के स्त्रोतस का संशोधन करें। आंत के छिद्रों को काली मिट्टी से कटाएं, मूछी काट दें और सिल दें। उसके बाद जो है वो है आपका यष्टि मधु मिश्रित कृष्ण मिट्टी का लेप कर पट्टी बांध दें और निवात स्थान में रोगी को ले जाकर तेल सर्पी के द्रोणी में लटाएं। केवल दूधाहार दकोदर जलोदर एसाइटिस स्नेह पीतस मंदाग्नि क्षीण से आतस शर्वस अम्बु अत्य अम्बुपान नष्टाग्निमांत क्लोम संस्थिता स्नेह पीने के बाद अथवा मंदाग्नि वाले पुरुष या दुर्बल या अत्यंत कृश व्यक्ति वाले मात्रा से अधिक जल का सेवन करने से उनकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप क्लोम नालिका में रहने वाले वायु और स्रोतस के रुक जाने से जल मिश्रित कफ ये दो उस जलीयांश को उदर में वृद्धि कर देते हैं। इससे उदर रोग की उत्पत्ति होती है। लक्षण है अनकाक्षी पिपासा स्त्राव शूलस्य कास दौर्बल्य नाना वर्ण राजी सिरास्वत उदक पूर्ण द्वति शोभ स्पर्शम भवति स्निग्ध महत् सब परिवृत्तो नाभि भस्रन पूर्णमिवातम यथा धृति सुबंति कर्मतज शैदायति। चिकित्सा शस्त्र में नाभि के नीचे वाम पार्श्व में रोगराजी से 4 अंगुल छोड़कर बहिर्मुख शस्त्र के उदर से अंगुष्ठ प्रमाण का अवगाढ़ भेदन करें। नेक्स्ट है हिमुख की नाड़ी से 2 शुक्त पानी निकालें। 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 16 के अंतर में पानी पिलाएं। एक साथ सारा पानी निकाल दें। तृष्णा ज्वल अंगमर्द अतिसार करेंगे। सुश्रुत आहार सुश्रुत ने बताया 6 महीने पर दूध जंगम मांस का रस देंगे। चरक ने दूध पान का देंगे। ठीक है। अगर सुश्रुत की बात करें तो 3 महीने पर हम आधा जल दूध पिलाएंगे, जल मिला दूध पिलाएंगे और चरक ने दूध प्लस पिलाएंगे। 3 मास तक हितकर लघु और अग्नि देंगे और चरक ने कोदो सावा का भात दूध लवण वर्जित है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एसाइटिस। एसाइटिस दकोदर और जलोदर को ही बोलते हैं। एसाइटिस क्या होता है, कलेक्शन है फ्लूइड का इन पेरिटोनियल कैविटी में। इसके बाद है माइल्ड क्लासिफिकेशन माइल्ड मॉडरेट सीवियर। माइल्ड की बात करूँ तो अप टू 100 to 150 ml। मॉडरेट की बात करूँ 100-500 to 1500 मॉडरेट में है 1500 to 2000 ml और सीवियर में ग्रेटर देन 2000 ml। क्लासिफिकेशन 2 होता है, ट्रांसुडेट और एक्जिक्वेट। ट्रांसुडेट प्रोफेन है ग्रेटर देन 2.5 mg पर DL एंड SAAG टू ग्रेटर देन लेसर देन 1.1। ठीक है। उसके बाद एक्जिक्वेट की बात करूँ तो प्रोटीन जो है वो क्या है, वो है ग्रेटर देन 2.5 mg पर DL और SGG है वो लेसर देन 1.1 mm। ठीक है। उसके बाद है CGC जो है MC क्लिनिकल फीचर जो है वो है हाइपोप्रोटीनिमिया, एनीमिया, बेरी नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स, पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूँ तो एक्जिक्वेट में है पेरिटोनियल डिजीज हो सकते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, पैरास्टाइटिस, नियोप्लाज्म, TB, कोलेजन, टेडो, एसोनोफेगस, ईसोनोफिल। इसोनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेरिक ग्रैनुलोमेटस पेरोनाइटिस। क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुअली एब्डोमिनल डिस्टेंशन इन सीवियर केस, रेस्पिरेशन एम्ब्रेसमेंट, रिस्क ऑफ द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरोनाइटिस। सच फीचर्स ऑफ रिलेटेड के साइंस है मिडिल पडल साइन इन नी एल्बो पोजीशन, डलनेस प्रेजेंट एरोनोमा अम्बिलिकस। उसके बाद है मॉडरेट शिफ्टिंग डलनेस। सीवियर में नेगेटिव फ्लूइड एंड थ्रिन ट्रांसटेनाइल साइंस में अम्बिलिकल अपवर्ड एंड cyst and downward in ascites। investigation है USG abdomen ascites tape always should be done
after emptying the bladder by placing needle below the umbilicus lateral to the pectus muscle. Treatment cause is treated. Therapeutic depth it should be slow and gradually or staged tapping up to 5 liter can be trapped in 9 minutes. Ascites, shunt surgery, spironectomy and the salt resections. Next alternative colitis क्या होता है कि it is an inflammatory cord of the rectum and column है. unknown etiology है. उसके बाद है perhaps related reflected to the stress, specialized diet, autoimmune factors. उसके बाद formal tendency, allergic factors. etiological factors की मैं बात करूँ तो westernized diet, red meat, defective mucus production in the colic mucosa, autoimmune factors, familiar in nature, stress. pathology की अगर मैं बात करूँ तो to begin with the multiple minute ulcer occur with the prostatitis colitis. उसके बाद ये अल्सर एक्सटेंड करेगा टू डीप लेयर. स्पैम होगा बाउल का और स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलन में जाएगा. उसके बाद परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड कॉलन होगा. इन बिटवीन अल्सर एपिथेलियम थिकनिंग अकर विच अपीयर लाइक कॉलिक. स्यूडोकोलाइटिस होता है. क्लिनिकल फीचर डिजीज यूजुअली बिगिन इन द रेक्टम एज प्रोलैक्टाइटिस बिकम लेफ्ट इन द कोलाइटिस एंड इवेंचुअली causes the severe total prolactin. More common in female 2:1 watery diarrhea, mucus of the blood stain, discharge per rectum, colon-gate pain and spasm, decreased appetite and loss of weight, relapses and remissions at the regular intervals. Two types of presentation, fulminant and chronic. Fulminant 5% severe होता है from the contaminated diarrhea with the. उसके बाद जो है वो है आपका फ्लूमेंट 5% सीवियर फ्रॉम विद द कॉन्टेमिनेटेड डायरिया विद द पैसेज ऑफ ब्लड, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीवर, हाइपोप्लेनिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट है क्रॉनिक की बात करूँ तो लास्ट फॉर द मंथ टू द विद डायरिया, ब्लड लॉस होता है, एनीमिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन. इन्वेस्टिगेशंस की मैं बात करूँ तो आपका है बेरियम एनीमिया, सिग्मोक्टोमी, कोलोस्कोपी, प्लेन एक्सरे, रिएक्टिव पेशेंट्स. अगर मैं बात करूँ तो जनरल ट्रीटमेंट में क्या होगा कि करेक्शंस ऑफ एनीमिया करोगे, सप्लीमेंट्स दोगे, फ्लूइड इलेक्ट्रॉन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, LTPN, सेडेक्टिव एंड ट्रांसप्लांट. फिजियोलॉजिकली काउंसलिंग होती है. ड्रग की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में सेलेजोप्राइन, सल्फानोजोलाप्राइन 2 to 4 ग्राम पर डे, मेस्लेनामाइन 2.2 to 4 ग्राम पर डे, स्टेरॉइड प्रीडिसोलोन 62 mg पर डे, इम्यूनोमॉड्यूलर साइक्लोस्पोरिन सर्जरी है. टोटल प्रोक्टोकोलेक्ट्रॉमी JNW pouch, total कैलेक्ट्रॉमी, टोटल प्रोलेक्टोमी विद द क्लेस्ट्रोक्टोमी. नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे इतना ख़त्म होता है आज का.